यस न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ यासीन जिगर। उर्दू डेवलपमेंट फोरम मंगलूर सेवा ट्रस्ट की जानिब से एक शाम नौजवान शायर हयात रोजिंदार के नाम प्रोग्राम मुनक्कद किया गया। शहर बीजापुर के मंगलूर होटल में एक शाम नौजवान शायर हयात रोजिंदार के नाम प्रोग्राम मुनक्कद किया गया था। इस जलसे की इफ्तिताह बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता बरसगीर के मुसन्निफ़ अमेरिका में रहने वाले डॉक्टर अब्दुल कादिर फ़ारूकी ने अपने मुबारक हाथों से की। इस प्रोग्राम की सदारत ख्वाजा अमीन आला के दरगाह शरीफ के सज्जादा नशीन हज़रत सैयद शाह मोहम्मद गेसूद राज़ ने की। इस प्रोग्राम में मेहमान ख़ुसूसी डॉक्टर अलीमुल्लाह हुसैनी, रफ़ीक भंडारी, अब्दुल कदीर, हमीद मंगलूर और उर्दू फोरम के सदर मोहम्मद शफ़ी खलासी और सेक्रेटरी जनाब अब्दुल रज़ाक पटेल मौजूद थे। इसके अलावा शहर बीजापुर के उर्दू कदरदां, शोरा और उद्बा भी मौजूद थे। डेल्टा लर्न ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश क्लासेस लाया है आपके लिए सुनहरा मौका। स्पोकन इंग्लिश आजकल ना सिर्फ एक शौक़ है बल्कि अहम ज़रूरत बन चुका है। अगर आप लोग घर बैठे इंग्लिश सीखना चाहते हो तो अभी हमारे एक्सपर्ट से संपर्क करें 9972295999 और 8050828793। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इल्लल इंसान लफी खुस्र वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहाति वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस्सब्र। बिगड़ी हुई बनती है हर बात मदीने में। बिगड़ी हुई बनती है हर बात मदीने में। गमख्वार मोहम्मद की है ज़ात मदीने में। जाकर तो कोई देखे हालात मदीने में। रहमत की बरसती है बरसात मदीने में। रहमत की बरसती है बरसात मदीने में।
آپ بینر پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ ایک شام نوجوان کا لفظ رکھا گیا ہے. یقیناً یہ نوجوان بھی ہیں اور جوان عزائم بھی رکھتے ہیں اور پھر ان جوان جذبات کو ابھارتے بھی ہیں. الحمدللہ اس حیثیت سے یہ معنوی اعتبار سے بھی آپ ایک نوجوان شاعر ہیں اور حیات روزندان. آپ شہر بیجاپور کی وہ شخصیت ہے جو دلوں پر چھما جانے والی شخصیت، جن کا ترنم سحر آفری ہے اور جن کا زبان و ادب پر جو دسترس حاصل ہے کہ الحمدللہ آپ صاحب کتاب کی آپ کی گل حیات منظر عام پر آ چکی. اور آج کے جو کنوینر ہیں محترم جناب محمد شفیع احمد خلاصی صاحب، صدر اردو ڈیولپمنٹ فورم جے پور، اور جناب عبدالرزاق اس پٹیل صاحب، سیکریٹری اردو ڈیولپمنٹ فورم جے پور، میں اس موقع پر ایک تمہیدی طور پر چند باتوں کو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ یہ سرزمین آپ کے اشعار کے اندر جو سادگی اور عام فہم انداز میں آپ بیان کرتے ہیں کہ شعروں کو سمجھنے میں کوئی زیادہ دقت نہیں ہوتی. اکثر ہوتا ہے کہ شعر مجھے سمجھ میں نہیں آیا، لیکن آپ کی زبان صاف ہے، ستھری ہے، دلنشین ہے اور سادہ. اور پھر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جس انداز میں حدیث تقدس پیش کیا ہے کہ ہم سے ثنا حضور کے کیا ہو سکے حیات. ایک ایسا مقام ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ ہم سے ثنا حضور کی کیا ہو سکے حیات، اللہ یہ خوب جانے ہیں ان کا حضور کا. اور وہی آپ کا جو سفر ہے، شعری سفر، کس طرح سے آپ نے غزلوں کو پیش کیا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ ادب برائے ادب کے قائل نہیں ہیں، بلکہ آج کے ادب کے اندر زندگی نظر آتی. ادب برائے زندگی کے آپ علمبردار ہیں. آپ عمل کی طرف ابھارتے ہیں، عملی جذبہ آپ ابھارتے ہیں. چنانچہ ایک شعر آپ کا یہ ہے کہ کامران ہونا اگر ہے اپنی دنیا خود بنا، کامران ہونا اگر ہے اپنی دنیا خود بنا، خود تیرا کردار پاکیزہ ہے شان زندگی. زندگی کی جو ترجمانی آپ نے کی ہے ہم اس کو محسوس کر سکتے ہیں. اور وہی آپ کی یہ فکر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ زبان ادب کی ترقی کس طرح سے چاہتے ہیں. تو آپ کا شعر ملاحظہ کیجئے، شعروں سے زندگی کی تماثل کہاں گئی، شعروں کی سے زندگی کی تماثل کہاں گئی. اردو ادب سے دولت فن کون لے گیا، اس کے مندی ہم دیکھ سکتے ہیں. اور وہیں آپ نے کہا نفرتوں کی آنے چنگاری، آپ حل بھی پیش کرتے ہیں کہ کیسے اس ملک کو سجانا ہے، کس طرح سے اس ملک کو خوبصورت ملک بنانا ہے کہ نفرتوں کی آنے چنگاری پیار سے ہم سے بچھائے. یہ وہ پیغام ہے حکم وطنی کا جسے آپ نے پیش کیا ہے. بیان نہ دیتے ہوئے میں اس جو نشست میں یہاں پر جو تمام حاضرین جمع ہیں، میں اس موقع پر تمہیدی طور پر جن باتوں کو کہنا چاہ رہا تھا، اس کا جو موقع مجھے دیا گیا ہے، میں منتظمین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وہاں پر ایک دوستی کا حق نبھانا ہے. میرے ہم نشیں ہم نبھانا جناب حیات روزندار کی شان میں نے آج ہی دوپہر میں کچھ الفاظ کرنے کیے ہیں، ملاحظہ کیجیے. ہے خواجہ امین اعلیٰ، کل ہند کے سرتاج ہیں خواجہ امین اعلیٰ، آپ کو پلائے میں وحدت کا کر. میں موجود تھا اس کر دیا ہے یہ کام نایاب سا، کر دیا ہے یہ کام آپ نے نایاب سا، اس لیے آپ کی ہمت افزائی ہم نے کی ہے. آپ میرے ہم نشیں ہم نوا ہم نوالا، دعا ہے دل سے مرتبہ ہو آپ کا. شکریہ دل و جان سے کیسے ادا کریں شفیع، شکریہ دل و جان سے کیسے ادا کریں شفیع، شہر بیجاپور کا آپ نے روشن کیا. میں حیات روزندار صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ایک ان کا بہت شاندار مستقبل ہے روزندار صاحب کا. میں بہت دنوں سے دیکھ رہا ہوں اردو شعر و شاعری میں ایک اچھا مقام کرتے ہیں.
चुके हैं। हयात रोजंदार साहब की खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उनकी खुशनसीबी है कि ऐसे कोहरावश शोरा की सरपरस्ती में एक शाम आपकी की जा रही है। ये इसलिए कि कोहरावश शायर की सरपरस्ती में जब नौजवान को मौका दिया जाता है तो उनके खूबियाँ, उनकी खामियाँ वो सरपरस्त जो हैं आसिफ इकबाल साहब हो या शोरा इकराम बैठे हुए हैं सीनियर, वो आपकी इस्लाह भी फरमाएंगे, आपकी हिम्मत अफजाई फरमाएंगे। क्योंकि शायर का ताल्लुक़ जो है ना, खतीब का ताल्लुक़ सामाईन से होता है और शायर का ताल्लुक़ अपनी ज़ात से होता है। जब वो अपनी ज़ात में गुम होकर एक अच्छा शायर जो कौम के लिए उसके मसाइल को पेश करे, तो तब कहीं जाकर हम कहते हैं कि ये शायरी की रिवायत की पासदारी कर रहा है। तो इसी खाक से उठने वाली शख्सियत का नाम हयात रोजंदार साहब है। तो वक्त नहीं है क्योंकि शोरा इकराम बैठे हैं, उनके कलाम को भी हमें सुनना है। यकीनन मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आपने गज़ल शायरी के तमाम असनाफ पर तवाज़ुन की। एक खूबी ये है कि आपने सलाम लिखा। मैं समझता हूँ उर्दू की रिवायत में एक पहल भी आपने की। ये यकीनन ये बहुत हम शहर बीजापुर के लिए फ़ख्र की बात है। शायरी करना यकीनन मुश्किल फ़न है, आसान काम नहीं है, मगर जब आप करते हैं और उसके सही सियाक़ व सबाक़ को जानते हैं और उसके हक़ अदा करते हैं तो तब आप उसके साथ इंसाफ करते हैं, वरना बंदी का नाम शायरी नहीं है। तो बस मैं मुबारकबाद देते हुए अभी बात करता ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಾರೂಕಿ ಸಾಹೇಬ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಫಾರೂಕಿ ಸಾಹೇಬ್ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಕೂತು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಉರ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು 21 ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ. ಇದು ಕೇಳಿ ನನಗೆ ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿನ್ನೆ ತಾನೇ ಗೊತ್ತು. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಅಂಜುಮಾನ್ನಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗುವಾಗ ನಾನು ಏನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ರಫೀಕ್ ಭಂಡಾರಿ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆಗ ಹೇಳಿದರು ನಾನು ಫಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ದೇವರವರನ್ನು ಚಲೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಪಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ರಫೀಕ್ ಭಂಡಾರಿ ಸಾಹೇಬರು ಅವರಿಗೊಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಅದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಆಸ್ಪದನೆ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಅಮೇರಿಕನ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಮಲಾ ಹ್ಯಾರಿಸ್. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಈ ಉರ್ದು ಅನ್ನು, ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದ ಊರಲ್ಲಿ ಉರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ. ಎಸ್, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ रफीक मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ ख़त्म करूँ, पीछे खाना है, सामने मैं हूँ। मैं ज़्यादा तो बहुत नहीं हूँ, बल्कि वो दक्षिणी में कहावत है, जो दक्षिणी है दक्षिणी को मुझे क्या है अपनी। सबसे पहले मैं जैसे कि जो मुतज़म्मिन हैं और जो इस जलसे को सजाने के लिए जो जगह मुहैया करे हैं, जो अपनी खुलूस दिल से नहीं बल्कि खुलूसी से जगह पेश किए हैं, मैं उनका बहुत शुक्रिया। मैं ज़्यादा वक्त नहीं दूँ। भंडारी साहब ने बहुत ही सही बात कही है। मीरात में मैं अकेला वाहिद लोग हिंदुस्तानी जो उर्दू होता हूँ, 199% पाकिस्तानी। और इन तमाम पाकिस्तानियों के बीच में क्या है, अल्लाह ताला ने क्या है मुझे कुछ लिखने के लिए, पढ़ने के लिए मौका दिया। ये बुजुर्गान का तस्वीर है। उर्दू हमसे मरते नहीं है, बल्कि हम मर जाते हैं, मगर उर्दू तो जिंदा है। जिसकी मादरी ज़बान उर्दू है, मैं किताबी के शायद पढ़े हैं, जिसकी
जिसकी मातृ जबान उर्दू है, जब वो उर्दू की कदर न करेंगे तो भैया वो अपनी माँ की भी कदर न करेंगे। हमारे में एक आदत है कि हम बहाना तलाशते हैं। भाई हमारे आज मौसम खराब है, बिजली आ रही है, नहीं है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। सबसे बड़ी चीज़ ये है, अगर हम उर्दू को जिंदा रखना चाहते हैं तो किसी पर डिपेंड मत बनिए। किसी पर डिपेंड होना गोया कि पानी पर चलने की हालत है। आप कब डूब जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा, पानी तो रहेगा। उर्दू हमेशा जिंदा रहेगी और मुझे उम्मीद है। दूसरी चीज़, जैसे कि मेरे बहुत ही अजीज भंडारी साहब ने कहा कि मैं उसको डीजे पे बनाऊँ, तो आप लोग सुनकर हैरान हो जाएंगे। मेरे पास आज तक सेल फोन भी नहीं है। मैं आज तक सेल फोन मैं इस्तेमाल करने को मुझे आदत नहीं, बस क्या है मेरी रेटिंग है वही बता। आज की जो शख्सियत है, नौजवान शायर, इनकी शायरी पढ़ के मैं भी नौजवान हूँ। शायरों को इज्जत देना, अदीबों को इज्जत देना, अदब को इज्जत देना। सबसे पहले हम ये देखना है कि फारसी में एक कहावत है, शायद अली मोहम्मद से जानते होंगे, शायर बजुज़्ते पैगम्बर। शायर बजुज़्ते पैगम्बर यानी कि शायर पैगम्बरी का दर्जा रखता है और शायर हमेशा एक पैगाम देता है। शायर अगर हुस्न को पेश करता है तो हुस्न का भी पैगाम देता है, अगर ज़िंदगी को पेश करता है तो ज़िंदगी का भी पैगाम देता है। मगर नौजवान शायर रोज़िंदा हयात, जिनकी किताब गुले हयात है, गुल के माने फूल, फूल के माने खुशबू, ये हयात है, खुशबू ही खुशबू। मैं उनका एक कलाम पढ़ा और रात भर सोचते रहा और इसका जवाब मुझे अब तक न मिला। वो कलाम मैं सुनाता हूँ और फिर आप सोचिए कि आप इसका जवाब तलाश कीजिए। अगर इजाज़त हो तो मैं उसका अनुमान है, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, क्या मेरा होना मेरा है, क्या मेरा होना मेरा है? अगर ऐसा नहीं है तो फिर मैं कौन हूँ? अगर मैं नहीं हूँ तो मेरी हस्ती, मेरी ख्वाहिश, मेरा ख्याल, मेरी डिस्ट्रीब्यूट, मेरी आरज़ू क्या है? क्या मैं एक ख्याल हूँ या फिर एक हकीकत? आखिर मैं कौन हूँ? मैं क्या हूँ? मैं बंदा हूँ, खुदा हूँ या हक का ज़हूर हूँ या असल ख्याल हूँ? अगर हक का ज़हूर हूँ तो इसलिए कौन है जो मेरे होने के पर्दे में छुपा हुआ है? मैं उसका राज हूँ या वो मेरा राज है? मेरे होने का राज क्या है? मैं जाहिर बंदा हूँ, बातिन में क्या हूँ? मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ? क्या मैं सिर्फ मिट्टी हूँ, हवा हूँ कि पानी हूँ कि आग हूँ? आखिर मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ? क्या मैं सिर्फ रूह हूँ या सिर्फ बदन हूँ या सिर्फ वजूद हूँ? आखिर मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ? क्या मैं सिर्फ नूर हूँ, खुदा हूँ या सिर्फ नूर मोहम्मद हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? आखिर मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ? ऐ हस्ती को ज़हूर देने वाले, ऐ हस्ती को ज़हूर देने वाले, मुझे किस मर्द हक आशना से मिला दे कि वो हयात को समझाए। आखिर मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कौन? ये है शायर की अजमत। मैं ऐसे शायर को सलाम करता हूँ।
अल्लाह के सामने दो ही खानदान हैं, एक काफिर और मोमिन। जो मोमिन है, मैं कौन हूँ तो मतलब समझ गया तो मोमिन बन जाता है। जो कौन हूँ, मैं कौन हूँ का मकसद न समझा तो फिर वो न मोमिन में जमा है न किसी और में जमा है। हमारी तरक्की, हमारी सवाल इस बुनियाद पर है कि पहले हम अपने आप को समझें, फिर आपको समझें, फिर आपको समझें। हमारी हालत ये है कि मेरी आदत ये है कि मैं अपने आप को समझने के लिए समझ तो नहीं सकता, मगर मुल्ला साहब को समझने के लिए मैं कोशिश करता हूँ। ये हमारी गलत ख्याल है। हमारे में गलत ख्याल ये नहीं करना चाहिए कि हम उसी वक्त कर सकते हैं जबकि अपने आप को समझें। अल्लाह ताला कहता है कि मैं तुम्हारे नफ्स के करीब हूँ। सही है। और हमारा फर्ज है, हमारी फिक्र ये होना चाहिए कि हमारे नफ्स में खुदा कहाँ है। ये उसी वक्त होता है कि जब हम मसले को हल करें कि मैं कौन। ये है शायर की किस्मत, शायर का बड़ापन। और मैं इस वजह से भी बहुत मैं हल करने को कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो सिर्फ इनमें पाई है कि मैं कौन हूँ लिखने का, आप सब लोगों के लिए एक सवाल है। आप सोचिए, अगर कोई हल निकला तो आप कामयाब हो गए, अगर हल ना निकला तो इंसान न रहेंगे बल्कि आदमी ही आदमी रहेंगे। अल्लाह ताला ने दो चीज़ें दी हैं। आदमी सोशल एनिमल है, आदमी पैदा ही आदम के औलाद से, मगर आदमी से जब इंसान बन जाता है तो वो मोमिन का दर्जा पा जाता है। इस नज़म में वो चीज़ सब पेश की है, ये मैं समझता हूँ कि सबसे आला नज़म जो मेरे नज़र में, इसके अलावा और कुछ नहीं। मैं और वक्त न लेते हुए मैं इतना ही कहूँगा कि उर्दू के लिए आज उर्दू मदरसे हमारे बंद हो रहे हैं या हम उर्दू मदरसों को बंद कर रहे हैं। ये सोचिए। मैं एक साहब से पूछा, मेरे पास एक साहब आ गए, 2 मिनट लेता हूँ। मेरे साथ एक साहब आए कि वही कि बिल्कुल मीडियम क्लास के हैं, समझे गरीब है। नहीं, मैं अपने बच्चे की एडमिशन में पढ़ा इंग्लिश मीडियम में, मैं शौक से क्यों देखता हूँ कि बच्चा है, आप मालिक हैं उसके। नहीं, मुझे क्या है 20,000 रुपये की ज़रूरत है एडमिशन लेने। तो मैं परेशान हो गया। क्यों गवर्नमेंट प्राइमरी उर्दू स्कूल में क्यों नहीं दाखिल हो? तो बताए कि वहाँ पर टीचर बिल्कुल ख़राब है, जगह भी ख़राब है, सब ख़राब है। इसलिए मैं अपने बच्चे को क्या है अच्छे स्कूल में 20,000 कर देंगे। ठीक है, आपका बच्चा जब एडमिशन लेता है तो आप कभी जाके उस उस्ताद से कभी मिले हैं कि आपका बच्चा क्या पढ़ता है? हम कभी नहीं पूछते। बच्चे को ले जाकर शौक से स्कूल में छोड़ते हैं, तो बच्चा खुद बहुत भाग के हमारे पास आ जाता है। तो उर्दू स्कूल को जो भी तालिब इल्म हैं, जो भी वालिदैन हैं, अपने बच्चों को जब उर्दू पढ़ाते हैं, प्राइमरी स्कूल में पढ़ाते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते हैं, तो ज़रूरी है कि हर महीना जाके टीचर से मिलें, टीचर से दोस्ती करें, टीचर क्या पढ़ा रहा है ये देखें, न कि काम था कहने में एडवर्टाइज में बताया मुझे कि है ना ये होटल की चाय अच्छी है, यहाँ पर रोटी देंगे, वो चाय कोई की भी नहीं खाने पीना चाहिए। ये हम इसलिए कि मेरे कहने का मकसद उर्दू हर जगह मौजूद है, दुनिया के कोने में मौजूद है, मगर हमें मायूस होने की और ज़्यादा होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपने कदम जमाने की ज़रूरत है। अगर हमारी मादरी ज़बान उर्दू है तो अल्लाह ताला आपसे सवाल ज़रूर करेगा कि आपकी मादरी ज़बान उर्दू है तो आप उर्दू को क्यों इज्जत नहीं देगा। ये भी सवाल है। ये तो सवालत रहेंगे, आप नमाज पढ़ेंगे, हज पे जाएंगे, तो इसके अलावा भी पूछेंगे कि मादरी ज़बान को आप इज्जत की निगाह से क्यों नहीं। इसलिए कि हमारा फ़र्ज़ है
कि हम उर्दू को जिंदा रखें। अगर हमारे स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में 10-12 हमारे ही बच्चे पढ़ेंगे तो खुद को खुद कहीं डिपार्टमेंट चलेगा। तो अमेरिका में भी हर शोबे में उर्दू है। मैं शायद अगर सब पे गवर्नमेंट की कॉपी भेज जाता कि वहाँ पर अगर ये चाहते किसी डिपार्टमेंट में कि हमें उर्दू में चाहिए तो आपको उर्दू में मुहैया करते हैं। आपके सामने ये बता रहा हूँ, अमेरिका में ये भी फैसिलिटीज़ है। अगर जज का कोई फैसला है, अंग्रेज़ी में होता है फैसला, तो आप कहेंगे क्या है मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती, मेरी उर्दू है, तो उसका ट्रांसलेशन करके वो फैसला आपको उर्दू में मिलता है। तो ये फैसिलिटीज़ है अमेरिका में, मगर हमारे पास क्या है, हम ये वो चीज़ नहीं है। आज देखिए, आज ऐसे हालात आ रहे हैं कि दुनिया में कोई भी मुल्क, कोई भी कंट्री, कोई भी शहर हर रोज़ाना खतरनाक से खतरनाक बनते जा रहा है। हमें मालूम नहीं कि बाहर हम पढ़ कर बाहर जाएंगे तो वापस नहीं आ सकते। ऐसी हालत में हम क्या है, अपने घर को सुधारेंगे, हम अपने बच्चों को सुधारेंगे। सबसे बड़ी चीज़, चाहे किसी भी ज़बान में पढ़ा, इब्तिदाई तालीम तो उर्दू में होना ज़रूरी है। बाकी के क्या है, अंग्रेजी है ये। मैं अपने असल लेक्चर में भी कहा था कि हम अंग्रेजी का होते हैं। जहाँ पर अंग्रेज़ों की हुकूमत थी वहीं अंग्रेजी है, जहाँ पर अंग्रेज़ों की हुकूमत थी वहीं अंग्रेजी नहीं है। अगर जर्मनी जाएंगे तो अंग्रेजी कोई नहीं बोलता, मैं अंग्रेजी समझ सकता। रशिया जाएंगे तो वहाँ पर नहीं है, फ्रांस जाएंगे तो वहाँ पर नहीं है, चाइना जाएंगे तो वहाँ पर नहीं है। क्यों? कि जहाँ पर अंग्रेज़ों ने जो हुकूमत की थी, अपनी ज़बान को मुसलत किया और वही ज़बान हमारे सर का ताज बनी हुई है। तो ये समझने की ज़रूरत है कि कम से कम इब्तिदाई तालीम सातवीं तक या मैट्रिक तक कम से कम उर्दू मीडियम हो। बाकी के क्या जो अंग्रेज़ी है तो जाना ज़रूरी है। खैर, मैं आपको ज़्यादा वक्त लिया और मेरी गुजारिश है इस कमेटी के लिए, जो हर वीक या हर हफ्ता, चाहे आप बड़ा मुशायरा करने की ज़रूरत नहीं है, बड़ा जलसा करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि 4 लोग भी बैठेंगे, अपना शेर सुनाएंगे, एक दूसरे को वाह बोलेंगे या कोई नज़म पढ़ेंगे, कोई अफसाना पढ़ेंगे, तो उर्दू का एक जलसा है। दूसरी चीज़, मुशायरों से, जलसों से तहजीब कायम रहती है ना। आज हम क्या कर रहे हैं कि अपनी तहजीब को छोड़कर दूसरों की तहजीब पर इतना अपना चुके हैं कि हम आज अपनी असलियत खो गए हैं। तो चाहिए, अमेरिका में जो होता है कि हर कहीं न कहीं मुशायरा होता है, कहीं न कहीं जलसे होते हैं। एक कोई अफसाना लिख रहा है तो अफसाना पढ़ते हैं और फिर उसके बाद मुशायरा होता है। कोई लोगों को जमाने की ज़रूरत नहीं, खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि है किसी होटल के कोने में बैठकर चाय पानी पीजिए और 2-4 कलाम पढ़िए और फिर मेंटेन कीजिए कि आप कितने ही हैं। तो इतना ही मेरी गुजारिश है। और उर्दू के लिए जो मेरी खिदमत है, अगर अल्लाह ताला मुझे हयात ही दिया तो मैं ज़रूर करूँगा। और मेरी किताबें जो भी आए ये मेरी नहीं है, अल्लाह की तरफ से मुझे ये क़ुव्वत मिली है, मुझे वो अल्लाह ताला ने मुझे ज़िंदगी अता किया है। मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ जिसकी वजह से कि मुझे लिखने का कुछ है। और आज भी मैं उर्दू का तालिब हूँ, उर्दू का माहिर नहीं। अगर कोई टीचर, अगर कोई शायर, कोई अदीब, कोई और ये समझता है कि मैं माहिर हूँ, तो क्या वो माहिर नहीं है, बल्कि सिखाने के लिए माहिर। अदब एक ऐसा समंदर है, आप जितना भी पानी ले लेंगे तो पानी में नहीं आए। तो इल्म ज़रूरी है, हमारे कौम के लिए इल्म ज़रूरी है और कौम इल्म ही हमें जवाब से निकाल सकती है। इतना कहकर क्या है, मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ कि कुछ अल्फाज इधर उधर हो जाते हैं, है ना। तो मैं बहुत ही मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने ऐसी नज़म लिखी जो मैं भी सोचने में नहीं हूँ कि मसला हल करने में हूँ कि मैं कहूँ। आज के इस प्रोग्राम में जो रौनक नज़र आ रही है
मैं समझता हूँ ये खास खुदा की मेहरबानी है, अल्लाह का लाख शुक्र एहसान है। ये जो चमक नज़र आ रही है, मैं तहे दिल से अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि वो आज इस महफिल को सजाने का मौका अदा किया। और ऐसे हमारे मोतबर मेहमान जो है हमारे शहर में तशरीफ लाए, ये बड़ी बात है। बहुत सारे मेहमान जो है बोल चुके हैं, मैं बस दो बातें करके जो है जगह लूँगा, क्योंकि मुशायरा सुनना है। बहुत सारे शोरा कराम हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं हमारे सज्जादा साहब हज़रत सैयद शाह मोहम्मद यसुरा साहब जी, जो अपने वक्त को जो है माला टाक रख के हमारी महफिल में तशरीफ लाए। और मैं हमारे उस्ताद मोहतरम और की सर का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि वो भी इस दावत पर तय करके अपना वक्त कीमती लगाया। और तमाम मेहमानों को आपका भी जो है मैं गहरे से शुक्रिया करता हूँ कि भंडारी साहब कह रहे थे कि बिल्कुल उनकी बात वजह है, मगर उस पर काम होना ज़रूरी है। मगर उर्दू ज़बान ऐसी है, मैं चार मिसरे उस पर बोल के जो है अपनी बात खत्म करूँगा कि यूँ अदब से हवा ये चलती है, यूँ अदब से हवा ये चलती है, बस उर्दू की जब भी सजती है, बस उर्दू की जब भी सजती है। पटेल साहब, कैसी शीरीं हयात है उर्दू, कैसी शीरीं है हयात उर्दू, उसकी उल्फत में दुनिया ढलती है, उसकी उल्फत में दुनिया ढलती है। मैं एक बार फिर जो है ज़्यादा बात न कहते हुए जो है प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मुशायरे को सुनना है, उसके बाद काम का भी इंतजाम है। मैं एक बार फिर जो है तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने जी अभी सदर साहब लगे हैं जी। तो बस मैं अपनी गुफ्तगू को चार मित्रों के साथ भंडारी साहब के मैसेज को आगे बढ़ाते हुए अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ कि कौम को अपनी जगाना होगा, कौम को अपनी जगाना होगा, वरना हावी ये ज़माना होगा। कौम को अपनी जगाना होगा, वरना हावी ये ज़माना होगा। अब न समझे तो सुन लो यारो, अब न समझे तो सुन लो यारो, सिर्फ जहन्नम ही ठिकाना होगा, सिर्फ जहन्नम ही ठिकाना होगा। मैं एक बार फिर आपका तमाम का शुक्रिया अदा करते हुए मैं गुफ्तगू को अपने जो है काम कर आमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक मरतबा बाबा से बुलंद बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में दूध पाक का हदिया और झालियाँ हदिया जवाब फरमाया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अज़वाजिही व आलिही व औलादिही व सहबिही व बारिक वसल्लम। नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला अपने कलामुल्लाह में इरशाद फरमा रहा है, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। मैं दिल की अमीर गहराइयों से हमारे हयात रोज़ंदर साहब को दुआ देता हूँ कि अल्लाह ताला इनके इल्म और अमल में बरकतें अता फरमाए। ख़ासकर हमारे रहबर, हमारे सरपरस्त जिन्होंने उर्दू ज़बान के लिए शेर शायरी में पूरे कौम को सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि गैर ममालिक में भी अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ चढ़ कर काम किया है।
मैं प्रोफेसर साहब के लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला इनके इल्म और अमल में बरकत अता फरमाए। तमाम अहबाब यहाँ बैठे हुए हैं। मैं वैसे तो बीजापुर में काफ़ी दिन से यहाँ हूँ, ख्वाजा अमीनुद्दीन अली आला की बारगाह का सब हूँ, सरकार का करम है। मैं पहली मरतबा बड़ी मुझे दिली खुशी महसूस हुई, हमारी उर्दू ज़बान के लिए आप लोग इतनी मेहनतें मुशक्क़तें कर रहे हैं। मैं दिल की गहराइयों से तमाम लोगों को सलाम पेश करता हूँ। ये बहुत बड़ा ख़दमा होता है। इसलिए दोस्तों, ये उर्दू ज़बान ये हमारी खुद की ज़बान नहीं है। इस ज़बान के लिए हमारे अकाबिर सूफियाने किराम ने बहुत मेहनत और मुशक्क़तें करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये उर्दू ज़बान को हम तक पहुँचाई है। हम जब भी तारीख़ का मुताला करते हैं, इस उर्दू ज़बान को बनाने के लिए ख्वाजा अमीनुद्दीन अली आला शेर खुदा ने भी अपने बहुत बड़ा अजीम कुर्बानी पेश किया है। ख्वाजा बुरहानुद्दीन जाना ने पेश किया है, मीराजी शमसुल शाह ने पेश किया है, सरकारी सैयदना ख्वाजा बंदा नवाज येसु दराज बुलंद परवाज ने भी बहुत ही ज़्यादा मेहनतें मुशक्क़तें पेश की है। यहाँ तक कि छोटा शरीफ के मखदूम अशरफ सरकार ने भी इस ज़बान को बनाने के लिए बहुत मेहनतें मुशक्क़तें की है। मैं दिल की अमीर गहराइयों से आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमारे प्रोफेसर साहब, ये हमारे भंडारी साहब, मुझे आज बड़ी खुशी महसूस हुई कि मुझे ऐसे लगा कि आज मैं इतने सालों के बाद हमारे बुजुर्गान दीन ने जिस मिशन को आगे बढ़ाया था, उस मिशन के कुछ मेंबर हजरात के साथ, सीनियर लोगों के साथ आज मुझे बैठने का मौका मिला। मैं खासकर हमारे हया साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस महफिल में शिरकत की। और हाँ, फ़न शायरी का जो मसला है दोस्तों, वो इश्क है। वो इश्क है, एक मोहब्बत है, एक इश्क है। मोहब्बत हर बार होती रहती है, अलग अलग होती रहती है, लेकिन इश्क जो है एक ही बार होता है। इश्क में जलन है, तड़प है, हाँ, इश्क में बेकरारी है, ये तमाम चीज़ें हैं। एक शायर इस्लाम हो या कोई भी शायर हो, जब अपने कलम को चलाते हैं वो उनका इश्क साहिर होता है, इश्क ज़ाहिर होता है। अभी एक हमारे प्रोफेसर साहब जो है एक कलाम पढ़ रहे थे, मुकम्मल तसव्वुफ था। अब बात है हम कौन हैं, ये हमें खुद की पहचान होनी चाहिए। जिस वक्त हमने पहचान लिया हम कौन हैं, समझ जाओ जैसे कि हदीस पाक में है, हदीस पाक में जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। ये हकीकत है, ये हकीकत है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे इस महफिल को कबूल फरमाए। उर्दू के लिए जो लोग हमारे मेहनत कर रहे हैं, इंशाअल्लाह जब भी ज़रूरत पड़ेगी ये फ़कीर नाचीज़ हर कदम के लिए हाजिर खिदमत है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब पर फजल व करम फरमा दे। इस वक्त आप लोग हम जानते हैं कि आज का इस दौर जो है पुरफतम दौर चल रहा है, जहाँ पे मुसलमानों पे तशद्दुद, हमारी ज़बान पे ये तमाम चीज़ हमारे साथ लगी हुई है। जब हम लोग एक प्लेटफॉर्म पर एक मुत्तहिद नारे होकर इंशाअल्लाह काम करेंगे, बुजुर्गान दीन की दुआएं भी शामिल रहेगी और अल्लाह तबारक व तआला भी हमारी मदद फरमाएगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬಾಜು ಇರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ನಡೆ ಸತ್ಯದ ಕಡೆ.